Okay, Malik. So, good afternoon, Malik. Hopefully, everybody is doing good. So, basically, this is with respect to your new syllabus only. ये चैप्टर न्यू सिलेबस में ही एप्लीकेबल है. ओल्ड सिलेबस का ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का चैप्टर इज मोर रिलेवेंट विद इसका. तो ये न्यू सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है. ओके, तो यहाँ पर हम लोग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे. Anyway, the basis of doing this particular chapter may have a certain impact on your MCQs and other things, but to the extent, make sure that what you are understanding here is getting your concepts clear. Okay, with respect to this chapter, your conceptual clarity with respect to automated environment should be there in your system. अगर आपके सिस्टम में वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो तोड़ कहानी खत्म हो जाएगी मालिक. ओके, नेवरदलेस ओके, आई हैव ड्रॉन द चार्ट, लेकिन मैंने उसके अंदर कोई पॉइंट्स लिखे नहीं है बिकॉज उसमें वापस टाइम जाता था. तो मैं सोचा करते 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 मैं अपडेट करते जाऊंगा, लेकिन इसके साथ में मैं ऑल टुगेदर आई विल बी अपडेटिंग द नोट्स के साथ में. तो नोट्स के साथ में अपन इसको अपडेट करते जाएंगे मालिक. तो थोड़ा सा आप नोट्स की तरफ भी ध्यान देना. Okay, when I say automated environment, you are already aware. Before going on automated environment, let's discuss like this. You are already aware, Malik, TOC and TOD. मेरे को एक बताइए, ऑडिट प्रोसीजर बताइए. ऑडिट प्रोसीजर दो तरह के होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो होते हैं, एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और एक होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर. सब्सटेंटिव प्रोसीजर में वापस चार होते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, एग्रीइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स एंड एग्जामिनिंग मटेरियल JV. Now the major question is test of control. Please do understand, one of the biggest problem in test of control in nowadays automated environment is that the controls are altogether implemented in the system or softwares. Now here is the biggest challenge for an auditor. The auditor who is not well versed with this technology or who is not well versed with this environment, how he can do the test of controls, Malik? A best example to understand, okay, if you remember the manual control that A used to create, A ने सैलरी बनाई, B ने उसका वेरीफाई किया, C ने किया, D ने किया, F ने किया. Now what if these things are done by software itself? Rather than, I am not telling completely automate, but there will be a very minimum human intervention. Example, okay, the attendance sheet जैसे होता होगा, and software, we are having a software which is calculating altogether wages or salary. Now this is exactly where auditor should understand that the information is generated by a technology. Information is generated by a system or software. I am relying on that information, no problem. But what about the reliability of that software? Or what about the reliability of that system? This is the biggest question. And for that purpose, this chapters come into picture. This chapter comes into picture, Malik. So ये chapter anyway मैं, because anyway we are doing in a summarized version, I'll be trying to explain you each and every concept. Okay, but make sure, because यहाँ पर permutation combination ज़्यादा अलग सकता है, but to the extent I will try my level best to make you understand each and every element of this particular chapter. So first thing they say, what are the key aspects in automated environment? To be very precise, okay, I do think this answer is very common and known to everyone. Okay, what are the key aspects in automated environment? First, it will be hardware. The second, it will be software. The third, it will be the network. And the fourth concept will be a middleware. मेरे ख्याल से पहले तीन चीज में तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए. पहली तीन चीजें सबको मालूम है. हार्डवेयर, जिस डब्बे से अभी आप इंटरैक्ट कर रहे हो, डब्बा कंप्यूटर का डब्बा या लैपटॉप का डब्बा या मोबाइल का डब्बा, दैट इज नथिंग बट हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर, ओके, यू आर ऑलरेडी अवेयर देयर कैन बी अ मल्टीपल सॉफ्टवेयर. आपने सुना होगा पैकेज सॉफ्टवेयर इज देयर. पैकेज सॉफ्टवेयर के साथ में देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड ERP सॉफ्टवेयर. Or even there is a concept of small ERP software. Example, Tally is a small ERP. SAP, MFG Pro, these are ERP. Package software, MS Office, package software है, package. एप्लीकेशन पैकेज मिलता है आपको MS ऑफिस में. ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, वर्ड होता है, एंड सो ऑन. दीज आर कॉल्ड, तो एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट एप्लीकेशन. तो आपको मॉड्यूल में वर्डिंग वैसे एप्लीकेशन मिलेगी, लेकिन मैं उसको सॉफ्टवेयर यूज करता हूं. दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन. एंड एप्लीकेशन आई डू थिंक यू शुड बी अवेयर. ओके, इट कैन बी ए पैकेज सॉफ्टवेयर, वन कैन बी ए स्मॉल ERP जैसे टेली हो गया, एंड वन कैन बी ERP. हार्डवेयर, ओके भाई, सर्वर्स होते हैं, PCs होते हैं, ओके, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, दीज आर हार्डवेयर. Sir, network, LAN, MAN, WAN. Right now you are watching the lecture. After downloading it, it is nothing but because with the help of network. Okay, LAN, MAN, WAN or something like that. Middleware is a very point which unless until you don't understand technology, तब तक ये मुश्किल होगा. तो इसके लिए I would recall your थोड़ा सा इंटर और IPC. I don't know how many of you be able to recall, लेकिन ये recall करना जरूरी है जिसके बाद ही मैं middleware बता पाऊंगा.
यहां पर थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके आईपीसीसी या इंटरमीडिएट दोनों में, ओके, अगर आईपीसीसी किया तो आपका सिलेबस आईटी था, इंटर किया है तो आपका सिलेबस ईआईएस था, तो दोनों कोई भी हो उसको रिकॉल करना पड़ेगा। देयर वाज टू कॉन्सेप्ट, इफ यू रिमेंबर, फ्रंट एंड बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब एग्जांपल, नाउ राइट नाउ आई एम हैविंग ए मोबाइल, एंड मोबाइल, ऑन मोबाइल देयर इज ए सॉफ्टवेयर, देयर इज एन ऐप, दिस इज कॉल्ड ए फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर, फ्रंट एंड। ओके, ये मैं जैसे एग्जांपल फ्लिपकार्ट का ऐप है मेरे स्क्रीन पे, फ्लिपकार्ट को क्लिक करता हूं, दिस इज फ्रंट एंड। ओके, ये फ्लिपकार्ट जो जाता है, ये जाता है वो सर्वर के डब्बे पे जाता होगा, सर्वर पे, वो सर्वर पे जहां पर स्टोर होगा, दैट इज कॉल्ड बैक एंड। To ensure that front end and back end are integrated, we require middleware. So middleware is a kind of server where front end of the software and back end of software integrate, and that is called a concept of middleware. So this is a technological term, but you should be aware, because if suppose you are auditing a Flipkart and Amazon, okay, so you are an auditor of Flipkart and Amazon, आप ऐसे तो नहीं बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो आईटी का नॉलेज नहीं है तो मैं ऑडिट नहीं लूंगा, और कौन छोड़ेगा भाई ऑडिट? अगर तेरे को कल फ्लिपकार्ट का ऑडिट मिलता है, तेरे को अमेजन का ऑडिट मिलता है, मेरे को बता, ओके, विल यू लीव दैट ऑडिट? Impossible, Malik, and that is where major consideration comes into picture. So middleware मतलब क्या होता है Malik? Middleware is something when we are discussing about the particular logic जहां पर front end and back end मिलता है Malik। तो पहला क्वेश्चन था की एस्पेक्ट्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, की एस्पेक्ट्स टू ऑफ ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ओके, तो लॉजिकली व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट, ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर 4 की एस्पेक्ट्स टू बी टेकन केयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड मिडलवेयर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये होने के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑडिटिंग ऑडिट एविडेंस। मालिक 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 समझने की कोशिश करो, द बेसिक प्रॉब्लम इज टेक्नोलॉजी में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जमा करना पड़ेगा। हाँ, हमने 230 में पढ़ा था कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए, ऑडिट एविडेंस आया और कंक्लूजन लिया, वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनता है। लेकिन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में उसके अंदर क्या क्या चीजें होगी, क्या क्या चीजें हमें और चाहिए रहेगी, इसीलिए आपको टेक्नोलॉजी के अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन जमा करने पड़ेंगे जो आपको जेनरिक वे में नहीं होंगे। बेस्ट एग्जांपल अगर बात करें, सर मेरे को बताइए, अगर आप परचेस का ऑडिट करोगे तो क्या डॉक्यूमेंटेशन करोगे? परचेस की पॉलिसीज प्रोसीजर देखोगे, परचेस का भाई कौन कौन ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, उनके प्रोसीजर क्या हो रहे होंगे, उनके परचेस ऑर्डर आप लोगे, परचेस ऑर्डर के अप्रूवल्स आप लोगे, डॉक्यूमेंटेशन लोगे ना मालिक। लेकिन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर के अंदर क्या डॉक्यूमेंटेशन लोगे, मेरे को आप बताइए, किस तरह से लोगे, क्या लोगे? ये 5 चीजें आपको समझनी होगी। दैट्स व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग। ओके, व्हाट आर द 5 थिंग्स यू विल गैदर एज ए पार्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस? ओके, व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशन यू विल गैदर एज ए पार्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस? तो यहां पर ये लोग बोलते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हम बताते हैं 5 चीजें क्या क्या होगी। सबसे पहले आपने समझना है, आपने डॉक्यूमेंटेशन लेना है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, यानी कंपनी कौन से एप्लीकेशंस यूज कर रही है। ओके सर, क्या सर वो ईआरपी यूज कर रही है या पैकेज सॉफ्टवेयर यूज कर रही है या स्मॉल पैकेज सॉफ्टवेयर ईआरपी यूज कर रही है? कौन से सॉफ्टवेयर? और ऐसा हो सकता है कोई कंपनी ईआरपी यूज नहीं करती होगी तो उनके पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर होंगे, वेजेस का सॉफ्टवेयर अलग, ओके, सैलरी का सॉफ्टवेयर अलग, परचेज का सॉफ्टवेयर अलग, सेल्स के सॉफ्टवेयर अलग। ईआरपी रहा तो ये सारा चीज एक हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा मालिक। तो पहला पॉइंट, एप्लीकेशन की लिस्ट लीजिए, उनसे डॉक्यूमेंटेशन लीजिए। दूसरा, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के डिटेल लीजिए मालिक। अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज एन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर? का भड़तोल वर्ड है सर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है बेटा? आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डेटाबेस, नेटवर्क, सिस्टम, सर्वर्स, ये है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सर्वर के डब्बे डाले होंगे आपने, उनको कनेक्ट किया होगा नेटवर्क से, उनके अंदर डेटाबेस होंगे, डेटाबेस मतलब ड्राइव्स डाले होंगे रे। ओके, कौन सा सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ऐसा ड्राइव, ये डॉक्यूमेंटेशन लो। तो पहला तुम क्या लोगे, आप समझे, क्वेश्चन समझ करो। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑडिट एविडेंस को लेने के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, तो कौन से डॉक्यूमेंटेशन लेने चाहिए ताकि ऑडिट एविडेंस बन सके? तो पहले सारे एप्लीकेशन का डेटा लीजिए, एप्लीकेशन की लिस्ट लीजिए। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्ट लीजिए। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की लिस्ट लीजिए। अरे मालिक सर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये लिस्ट क्या काम की है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आईटी का अलग होता है, वो स्ट्रक्चर की लिस्ट लीजिए। एनी एग्जांपल सर? यस, आई विल गिव यू। यूजुअली ओके, आईटी का स्ट्रीम अलग रहता है, स्ट्रीम मतलब एक चैनल। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहता है, सीआईओ, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के नीचे 3 कैटेगरी हो सकती है। मैं तो एक जेनरिक बता रहा हूं, एग्जांपल जेनरिक बता रहा हूं, ये जेनरिक एग्जांपल चल रहा है तो जेनरिक वे से समझिए। ओके, एग्जांपल, इधर भी मैनेजर होगा, इधर भी मैनेजर होगा, इधर भी मैनेजर होगा, सीआईओ के नीचे। और ये मैनेजर कौन से इसका होगा? एग्जांपल, ये मैनेजर होगा एप्लीकेशन का, ओके, ये मैनेजर होगा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये मैनेजर होगा आईटी फैसिलिटीज का। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। हाँ,
आईटी फैसिलिटीज। अभी एप्लीकेशन में ओके और टीम होगी सर, कौन सी? एक होगी ऐप सपोर्ट टीम, ऐप सपोर्ट टीम जो एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगी। एक होगी ऐप डेवलपमेंट टीम जिसको हम लोग सिस्टम डेवलपमेंट बोलते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाती होगी। एक होगी ऐप सपोर्ट टीम जो सपोर्ट करती होगी। एक होगी सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली टीम, वो टीम होगी, वो उसके नीचे काम करते होंगे। यानी ऐप डेवलपमेंट काम करेगा, फिर ऐप सपोर्ट टीम उसको सपोर्ट करेगी, उसके बाद ऐप मैनेजर को अपडेट होगा, फिर वो सीआई को अपडेट करेगा, फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपडेट करेंगे। हायरार्की सर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी 2 मिनट पहले समझाया आपने, सुना होगा डीबीए, इंटर में पढ़ा होना चाहिए, आईपीसी में पढ़ा होना चाहिए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसके नीचे काम करते होंगे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये काम करते होंगे। जो न्यू सिलेबस वाले बंदे लोग हैं, न्यू सिलेबस वाले जो लोग हैं, वो चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 अगर आपको याद होगा ईआईएस का, उसके अंदर आपको लास्ट हायरार्की थी, वो आप हायरार्की यहां पर देख रहे हो। और जो ओल्ड सिलेबस है उनके लिए जेनरिक पॉइंट में था, कोई ऐसा स्पेसिफिक चैप्टर में इंक्लूडेड नहीं था। और आईटी फैसिलिटीज क्या होती है सर? आईटी फैसिलिटीज मतलब हेल्प डेस्क, हेल्प डेस्क होंगे हमारे, हेल्प डेस्क सपोर्ट करते होंगे, हेल्प डेस्क होगा आईटी फैसिलिटीज में। उसके अलावा वेंडर सपोर्ट होगा, वेंडर सपोर्ट मतलब कोई वेंडर सपोर्ट करता होगा। दिस इज हाउ द हायरार्की वर्क्स। तो ये हायरार्की लीजिए, पहले सॉफ्टवेयर की डिटेल लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल लीजिए, फिर ऐसी हायरार्की जमा करिए, फिर इनके पीपी लीजिए, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, और उनके बाद इनके रिस्क एंड कंट्रोल देखिए जो आईटी रिलेटेड होंगे। दैट्स इट। ओके, तो मेरे ख्याल से सेकंड कॉन्सेप्ट समझा होगा। मैं वापस बता रहा हूं, मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट थ्रू जाएंगे तो ही आपको ये समझ में आएगा। अगर इसको रटना है तो आपको रटना एफर्ट्स करना होगा। ये चार्ट देखिए, चार्ट को रट लीजिए, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कहना क्या चाहते हो भाई। ये कहना क्या चाहता है, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो रिश्ता बनाना जरूरी है इसके साथ। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इतना आसान नहीं है, और अगर मैं इसको आधे घंटे में खत्म करना चाहूंगा ना, तो आधे घंटे में इसको मतलब समझाना भी है आपको, एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट भी समझे, एमसीक्यू भी आए और आंसर लिखना भी आए, तो इट रिक्वायर्स थोड़ा सा एफर्ट्स, तो थोड़ा सा मतलब लॉजिक आप डालिए मालिक। तो मेरा पहला था कि एस्पेक्ट्स क्या देखोगे, तो टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, एंड प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस इज नथिंग टू डू विद आईटी ऑडिटर, दिस इज समथिंग व्हिच स्टैट्यूटरी ऑडिटर विल आल्सो डू। दिस नॉट ओनली आईटी ऑडिटर विल डू, आईटी ऑडिट का सिलेबस इसमें नहीं कवर है। डीसा बनने के बाद देखोगे आप आईटी ऑडिट। ओके, इंटर में आपने पढ़ लिया है। ओके, आईपीसी वालों के लिए नहीं था, पर आईटी ऑडिट हो चुका है। इंटर वाले स्टूडेंट को आईटी ऑडिट वाला कॉन्सेप्ट हो चुका है मालिक। ये आईटी ऑडिट करके नहीं पढ़ रहे हो, डूइंग द ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। हाँ, दिस कैन बी ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर, दिस कैन बी ए इंटर्न ऑडिटर, दिस कैन बी ए मैनेजमेंट ऑडिटर ऑल्सो, दिस कैन बी एनी ऑडिटर। देयर इज नो कॉन्सेप्ट दैट दिस इज टेक्नोलॉजी ऑडिट। हाँ, बट वो जो ऑडिटर आएगा तो उसको समझना होगा कि ऐसी ऐसी चीजें होगी, और टेक्नोलॉजी ऑडिटर रहेगा उसको ये थोड़ा समझना होगा, इसको बेसिक एग्जांपल रहेंगे मालिक। ओके, ये होने के बाद कंसीडरेशंस ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर मेरे को बताइए ऑडिट में साइकिल कितने होते हैं? 3 साइकिल होते हैं, अगर आपको याद होगा, ये अपन ने पीएससी ऑडिट में भी पढ़ा है। प्लानिंग होता है एक, प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन होता है, और एग्जीक्यूशन के बाद रिपोर्ट होता है। भारत माता की जय। याद आया? रिपोर्ट को हम लोग बोलेंगे यहां पर, बिकॉज आईटी ऑडिट है तो यहां पर रिपोर्ट नहीं होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट में होती है, तो यहां पर होगा कंप्लीशन। कंप्लीशन। तो what are the 3 phase in IT audit? There are 3 phase in IT audit. There is a planning phase, there is the execution phase, and there is a completion phase. Planning, execution, completion. Planning, execution, completion. अब ये लोग बोलते हैं जब आप प्लानिंग करोगे, जब आप एग्जीक्यूट करोगे, जब आप कंप्लीट करोगे, तो क्या क्या कंसीडरेशंस ध्यान में रखोगे? जब आप प्लानिंग करोगे, जब आप एग्जीक्यूट करोगे, जब कंप्लीट करोगे, तो क्या क्या कंसीडरेशंस। कंसीडरेशन मतलब इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है। सर सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? सेकंड में हमको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए थे, थर्ड में फैक्टर्स जैसे होता है ना वैसे कंसीडरेशंस, अगर आपको याद होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये फैक्टर्स नहीं हो सकते। रीजन सिंपल है कि फैक्टर्स में एग्जांपल अगर 5 फैक्टर्स है तो 5 में से 2 भी कवर किए तो चल जाता है। कंसीडरेशन अगर आपको याद होगा तो 5 दिए तो पांचों के पांचों कंसीडर करने पड़ेंगे आपको। तो इफ देयर आर सेइंग कंसीडरेशंस ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इट मींस ओके ये 3 फेज में क्या क्या कंसीडर करोगे, ये सारे कंसीडर करने पड़ेंगे। आगे 7 पॉइंट है, ये सातों के सातों कंसीडर करने पड़ेंगे। ये 7 में से कोई भी 5 नहीं करोगे। ओके, ये फैक्टर जैसा ही है, बट ये सब कुछ इंक्लूड करना है, सब कुछ कंसीडर करना है मालिक। तो क्या क्या है? पहला रिस्क असेसमेंट। ओ माय गॉड, बिना रिस्क असेसमेंट के काम कैसे करोगे? तो पहला पॉइंट रिस्क असेसमेंट, बिना रिस्क असेसमेंट के काम नहीं होगा। ठीक है मालिक, तो रिस्क असेसमेंट करेंगे। ठीक है, रिस्क असेसमेंट के साथ में वॉक थ्रू करेंगे। सर वॉक थ्रू क्या होता है? वॉक थ्रू मतलब गो थ्रू करना, पूरा सिस्टम क्या है चेक करना, साथ में बैठना। ओके, अच्छा ये है कि ये सॉफ्टवेयर कैसा काम करता है, ठीक है, ये है ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, ये ठीक है।
पहला रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का आपका जनरलाइज अप्रोच होगा। जनरलाइज अप्रोच मतलब आपको देखना पड़ेगा ओके इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क वाला कॉन्सेप्ट, तो आपको वो अप्रोच लगाना पड़ेगा। उसके बाद वॉक थ्रू करना पड़ेगा। उसके बाद देखोगे आईटी गवर्नेंस। सर आईटी गवर्नेंस होता क्या है? आईटी गवर्नेंस अभी के लिए आप इतना समझ लो, ये ट्रांसपेरेंसी के रिलेटेड होता है। क्या ये ट्रांसपेरेंट है सिस्टम्स? एग्जांपल, ट्रांसपेरेंसी ऑफ सिस्टम्स कैसे डिफाइन की जाएगी? अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो रहा है, कोई पर्सन है जो अगर डेटा एंट्री करता है तो उसको वो डिलीट नहीं कर सकता। ओके, आईटी गवर्नेंस वाले स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड आईटी गवर्नेंस। उसके बाद और एक देखा जाता है एसओडी और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है कि नहीं है। तो पहला ओके, व्हाट आर द कंसीडरेशंस वी नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग द ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? फर्स्ट विल डू रिस्क असेसमेंट, सेकंड वी नीड टू गो थ्रू वॉक थ्रू ऑफ द आईटी सिस्टम, थर्ड वी नीड टू टेक केयर ऑफ आईटी गवर्नेंस, फोर्थ वी नीड टू फोकस ऑन वेरियस कंट्रोल्स, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, जनरल कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स। विल डिस्कस जनरल कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। एनीवे, जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल सारे स्टूडेंट ने, आपने आईपीसीसी किया हो या आपने ईआईएस किया हो, या मतलब आईटी किया हो या ईआईएस किया हो, दोनों में आपने पढ़ा होना चाहिए जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल। तो वो कॉन्सेप्ट यहां पर कवर हो जाता है। उसके बाद एनटीई, और ये ऊपर के बेसिस पे आपका एनटीई हो जाएगा ऑफ टेस्टिंग। ओके, तो आप कितना हद तक टेस्टिंग करोगे, नेचर, टाइमिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग। अब मेरे को बताओ, कंट्रोल बहुत तोड़ है तो टेस्टिंग ज्यादा करोगे या कम करोगे? कम करेंगे। ओके, और कंट्रोल्स बहुत वीक है तो टेस्टिंग ज्यादा करोगे। ओके, ये टेस्टिंग करेंगे और ये टेस्टिंग के इसमें से अपन को इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, रिपोर्ट्स जनरेट होगी, उस पर रिलाई करना कि नहीं करना ये समझ में आएगा। रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय सिस्टम, तो उस पर रिलाई करने के लिए वो टेस्टिंग के बेसिस पे आउटकम आएगा। एंड एट दिस पॉइंट वी कैन यूज फोकस ऑन डीआईसी, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। ओके सर, प्लीज लास्ट 2 पॉइंट को वापस एक्सप्लेन किया। ठीक है, मैं समझा रहा हूं। देखिए, 5वां पॉइंट क्या बोलता है? ओके, पहले 4 पॉइंट के बेसिस पे हम लोग को समझेगा कितना टेस्टिंग करना है, ज्यादा करना है, कम करना है। पहले 4 में अपने को समझा कंट्रोल बहुत वीक है, वॉक थ्रू करने के बाद समझ में आया कि यहाँ पर सही नहीं है, आईटी गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी सही नहीं है, रिस्क ज्यादा है। तो मेरे को बताओ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज्यादा है या कम? ज्यादा, 100%। तो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग ज्यादा होगा। लेकिन अपने जब वॉक थ्रू किया, आईटी गवर्नेंस तोड़ है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी तोड़ है, ओके, तो मैं टेस्टिंग कम करूंगा। ओके, अब कम किया या ज्यादा किया, अपने को रिजल्ट्स आएंगे, अपने को समझेगा कि यहाँ पर सिस्टम में फ्लॉज है या नहीं है, सिस्टम में फ्लॉज है या नहीं है। अगर सिस्टम में फ्लॉज नहीं है, मालिक सिस्टम में फ्लॉज नहीं है तो मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन सिस्टम में फ्लॉज है तो मेरे को दिक्कत होगी। सर किस पे? ओके, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम से आ रही है वो रिलायबल होगी कि नहीं होगी, ये पर डाउट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन कम, सर हम लोग को कैसे पता चलेगा? यानी एग्जांपल हो सकता है कोई स्टूडेंट मुझे पूछे, अभी यहां पर स्टूडेंट का डाउट होगा, सर ये कैसे टेस्टिंग कैसे करेंगे? टेस्टिंग कैसे करेंगे यहां पर नहीं पढ़ाया गया है। टेस्टिंग कैसे करेंगे वो आप इंटर में पढ़ लेते हो मालिक, कैट टूल से, स्नैपशॉट, आईटीएफ, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटीज, ये आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, आईपीसी में पढ़ा होगा, वहां पर आपको समझाया जाता है टेस्टिंग कैसे करते हैं। ओके, स्नैपशॉट होता है, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी होती है, सीआईएस होता है। ओके, जहां पर आप याद होगा, आपको मालूम होगा, डमी डेटा डालते हो, डमी डेटा डालने के बाद एक बेस्ट एग्जांपल बोल रहा हूं। ओके, मेरे ये ताकि समझ में आ जाए इसलिए मैं समझा रहा हूं एग्जांपल। ओके, एग्जांपल मेरे पास है ना एक सॉफ्टवेयर है जिससे रिसीट बनती है स्टूडेंट की। अब रिसीट एग्जांपल बोल रहा हूं। ओके, एग्जांपल 11,800 रुपए फीस है। ओके, तो रिसीट बनती है 10,000 की, 900 रुपया आईजीएसटी और 900 रुपया आई नहीं एसजीएसटी और 900 रुपया सीजीएसटी, ऐसा कुछ आता है, और 11,800 की रिसीट बनती है। ओके, अब आपको रिसीट दिखा रहा हूं कि जीएसटी इतना आ रहा है। अब आपको ये देखना है ये सॉफ्टवेयर बराबर कैलकुलेशन करेगा क्या, क्योंकि अभी 11,800 में तो आपको मालूम पड़ गया, दूसरे भी तो रिसीट बनती होगी, तो हर चीज का जीएसटी चेक करना है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लेट्स सी वेदर सिस्टम कैन जनरेट ओके दिस जीएसटी का कैलकुलेशन बराबर और नॉट। तो इसीलिए आप डमी डेटा डालते हो। एग्जांपल, ओके, XYZ ने एडमिशन लिया जो कि है ही नहीं एक्चुअली, और उसका डालते हो कि 5,000, और 5,000 के बाद देखते हो जीएसटी कितना आ रहा है, और फिर आप देखते हो अच्छा बराबर आया कि नहीं आया। अब इसमें और एक मेन क्वेश्चन था कि आपने जो डमी डेटा डाला था वो मेरे सिस्टम में रह गया, तो उसको तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि सिस्टम के हिसाब से वो डेटा है, तो वो इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी में हाउ टू रिमूव द आईटीएफ डेटा आल्सो हैज बीन टॉट इन योर सिलेबस ऑफ आईटी, आईपीसीसी में और इंटरमीडिएट में ऑडिट के सिलेबस में। तो टेस्टिंग पॉइंट आप समझे मालिक। तो जब आप आईटीएफ यूज करोगे, आप स्नैपशॉट यूज करोगे, तो आपको समझेगा कि सिस्टम तोड़ है कि खराब है, और अगर तोड़ है तो भाई अगला पॉइंट है रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन जो भी सिस्टम से आ रही है उस पर रिलाई करो, और अगर आपको लग रहा है कि खराब है तो रिपोर्ट को यूज मत करो, और रिपोर्ट को यूज नहीं करोगे तो डीआईसी है या नहीं है वो बताइए। मैं आपको वापस बता रहा हूं, दिस इज नथिंग टू डू विद ये, मतलब आप समझे इस पे रिपोर्टिंग क्या है, इसके बेसिस पे अपन ये देखेंगे कि भाई सब्सटेंटिव प्रोसेस ज्यादा करना है कि नहीं करना है मालिक। खत्म मालिक। आई डू थिंक ओके लास्ट 20 मिनट में मैंने जो समझा है, बिकॉज ये सबसे मेन स्ट्रक्चर है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, इसके बाद आपका आता है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। तो वापस आते हैं कंसीडरेशंस व्हिच शुड बी कीप्ट इन माइंड व्हाइल फॉर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। पहला रिस्क असेसमेंट, वॉक थ्रू करिए, आईटी गवर्नेंस चेक कीजिए, कंट्रोल्स चेक कीजिए, जनरल कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। उसके बाद टेस्टिंग कीजिए, उसके बाद भाई पता करिए रिपोर्ट पे रिलाई करे कि नहीं करे, एंड डीआईसी है तो रिपोर्ट करिए। दैट्स इट, कॉन्सेप्ट खत्म।
ये होने के बाद आपका आता है ERM, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। और एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट मतलब, प्लीज डू अंडरस्टैंड, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट ए रिप्लेसमेंट फॉर इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क। प्लीज मेक इट श्योर, ये आपके दिमाग में क्लियर रहे, ये इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क को रिप्लेस नहीं करता। सर व्हाट इज एन इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क? ओ इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क झंपे, कंट्रोल एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग, दिस इज नथिंग बट इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क। तो ये इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क को रिप्लेस नहीं करता एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एंटरप्राइज के सारे रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करता है। ओके, एंड दिस इज मोर ऑफ टेक्नोलॉजी रिस्क, दिस इज नथिंग टू डू विद जनरल रिस्क। तो जो जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क होंगे, ERM एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क को ये मैनेज करेगा। मैनेज करेगा मतलब ओके, अब इसको कैसे समझाए? रिस्क को मैनेज करने के क्या क्या तरीके हैं? मिटिगेट करना, ट्रांसफर करना, एक्सेप्ट करना, अवॉइड करना, ये सब तरीके यूज करना इज ए पार्ट ऑफ एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। तो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में ओके क्या कॉन्सेप्ट देखा जाता है? ये लोग बोलते हैं पहले अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स बताइए, मतलब वो पता करिए। ऑडिटर ओके, एंटरप्राइज के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स पता करिए। उसके बाद पता करिए इवेंट्स जो इनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव और गोल्स की वाट लगाएंगे। आइडेंटिफाई द इवेंट्स विच विल कॉम्प्रोमाइज, विच विल अफेक्ट, identify the events which will affect the objectives of the business. तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, सेकंड आइडेंटिफाई द इवेंट्स। ओके ठीक है, इवेंट्स आइडेंटिफाई कर दिया, उसका पता करिए असेस द लाइक्लीहुड ओके एंड इंपैक्ट, कितने चांस है कि वो जो इवेंट सेकंड में अपन ने देखे वो कितने चांस है कि वो इंपैक्ट होंगे। थर्ड जो समझ में आया, एसेस करना। और फोर्थ मैंने आपको जो बताया, रिस्पॉन्ड एंड मिटिगेट रिस्क, रिस्पॉन्ड एंड मिटिगेट रिस्क। ओके, यानी एग्जांपल, अब उसके अगेंस्ट कंट्रोल डालना है। ओके, मिटिगेट रिस्क, कंट्रोल कैन बी मल्टीपल। एक तो कंट्रोल है, कंट्रोल ऐसा होगा जो रिस्क कम करेगा, या कंट्रोल होगा ट्रांसफर करना। सर मेरे रूम में अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बायोमेट्रिक डाल सकता हूँ। ओके, प्रमोद को खड़ा कर सकता हूँ, लॉक एंड की हो सकते हैं, CCTV कैमरा हो सकते हैं। ओके, मल्टीपल, ये है मिटिगेट रिस्क करने के तरीके, यानी फोर्थ पॉइंट में। लेकिन अब मेरे को बताइए, बायोमेट्रिक डाले या प्रमोद को खड़ा करे। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन थर्ड पॉइंट। आपको ये समझना होगा उसका रिस्क का इंपैक्ट कितना है। देखो, बायोमेट्रिक डालोगे तो उसका कॉस्ट ज्यादा आएगा, प्रमोद रहेगा तो उसकी सैलरी कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगी। और बायोमेट्रिक डालोगे तो कैपिटल कॉस्ट ज्यादा आएगी लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट कम रहेगी। ओके, प्रमोद में कैपिटल कॉस्ट कम होगी लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा होगी। तो आपको यह समझना पड़ेगा बेस्ड ऑन थर्ड पॉइंट कि उसका इंपैक्ट कितना है। उसके बेसिस पे आप ये पता करोगे भाई यहां पर मेरे को कैपिटल कॉस्ट इनकर करनी है, ऑपरेशनल कॉस्ट इनकर करनी है। दैट विल बी डिसाइडेड ऑन फोर्थ फैक्टर। तो पहला आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव समझिए, सेकंड कौन से इवेंट आपके बिजनेस की लगाएंगे, थर्ड वो जब लगेगी उसके चांसेस कितने और उसका इंपैक्ट कितना होगा, चौथा जितना इंपैक्ट होगा उसके सामने काउंटर कंट्रोल्स डालिए, और कंट्रोल लाने के बाद लास्ट पॉइंट, एसेस रेसिडुअल रिस्क, एसेस रेसिडुअल रिस्क। ओके, बी रेसिडुअल रिस्क, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है, मेरे को बताओ, बायोमेट्रिक डाला है या प्रमोद खड़ा रहा, क्या 100% रिस्क जीरो हो जाएगा? नहीं, देयर विल बी रिस्क, लेकिन चांसेस कम होंगे। तो कितने चांसेस जो बचे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्क एपेटाइट, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल रिस्क। एवरीबॉडी क्लियर? खत्म। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में कितने स्टेप्स है? ओके, थोड़ी इजी आंसर है, आराम से ध्यान रख सकते हैं मेरे ख्याल से। सबसे ये कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल का लॉजिक याद रख लिया ना तो कहानी खत्म है रे, सब कुछ उस पर ही निर्भर है। बस ये पॉइंट है कि इट इज एक्सटर्नल फ्रेमवर्क, दैट्स इट, आईटी के रिलेटेड फ्रेमवर्क है। तो क्या क्या है? सबसे पहले बिजनेस को देखिए, फिर उसके पास इवेंट्स पता करिए कौन से वाट लगाएंगे, तीसरा वो इवेंट अगर लग गई तो कितना इंपैक्ट होगा, उसके लिए कंट्रोल्स डालिए, एंड अल्टीमेटली ओके पता कीजिए बचे हुए कंट्रोल कितने हैं, एपेटाइट कितना है, रिस्क एपेटाइट कितना है। ओके, सो दिस इज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन आता है, मेरे को बताइए, ओके एक बार स्क्रीन पे देखिए, कंसिडरेशंस ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, क्या क्या कंसीडर करना है। तो मुझे क्या क्या करना है? रिस्क असेसमेंट करना है, वॉक थ्रू करना है, आईटी गवर्नेंस करना है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग पता करना है, रिपोर्ट एंड डीआईसी। अब क्वेश्चन है रिस्क असेसमेंट मतलब क्या? 100% रिस्क असेसमेंट में अपन क्या करते हैं, जो ऑल टुगेदर आपको पता होगा, इनहेरेंट रिस्क देखते हैं, कंट्रोल रिस्क देखते हैं, और उसके बाद डिटेक्शन रिस्क की बात करते हैं। तो इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क का कॉम्बिनेशन अपने को पता करना होता है। व्हाट इज एन इनहेरेंट रिस्क? इनहेरेंट रिस्क मतलब कंट्रोल्स है ही नहीं, और कंट्रोल रिस्क मतलब कंट्रोल है लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो व्हेन कंट्रोल्स है, कंट्रोल काम नहीं कर रहे, यहां पर कौन से कंट्रोल्स देखे जाते हैं, टेक्नोलॉजी में कौन से कंट्रोल देखे जाते हैं? तो ये लोग बता रहे हैं, अगला पॉइंट, ओके एसेसिंग आईटी रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल, आईटी रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल। ओके, एक्सप्लेन ओके हाउ यू असेस और व्हाट आर द कंट्रोल रिस्क एंड कंट्रोल्स व्हिच आर असेस्ड बेस्ड ऑन आईटी।
तो आईटी रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल को एसेस करना रहा तो 3 तरह के कंट्रोल आपको ध्यान में रखने होंगे, जिसमें से 2 तरह के कंट्रोल आपको ऑलरेडी पता है। पहला है जनरल कंट्रोल्स, दूसरा है एप्लीकेशन कंट्रोल्स, एंड तीसरा है आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। आराम से, ओके मालिक, आराम से जाइए, आराम से जाइए, बहुत इजी आंसर है ये, और 2 आंसर अपने लिए अच्छे से ध्यान रखने हैं, उसके बाद और कुछ नहीं है। ये चैप्टर एकदम आसान है। ओके, मेक इट श्योर आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, बिकॉज ये समझ में आया तो आसान होती है मालिक, नहीं समझ में आया तो दिक्कत होती है मालिक। ओके, तो नेवरदलेस लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। फर्स्ट पॉइंट, 3 controls are there: general controls, application controls, and IT dependent controls. General controls are those controls which are there in IT, but they are not directly related to okay, software. General controls are related to IT, but they are not directly related to software. General controls are related to IT, but they are not directly related to software. Okay, एक software के related कोई control नहीं है। Tally का control is not a general control. Tally का control is application control. तो सर आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल क्या हो गया, डिस्कस बाद में करेंगे, तो थर्ड को तो छोड़ ही दो, पहले 2 की बात करते हैं। और ये अगर जिसने आईटी किया हुआ है तो ऑल टुगेदर चैप्टर 5 में पढ़ा होगा, और जिसने ईआईएस किया हुआ है चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, जनरल कंट्रोल्स एंड मैनेजरल कंट्रोल्स। तो आपको याद होगा, ओके, मैनेजरल कंट्रोल जनरल कंट्रोल सेम है, और एप्लीकेशन कंट्रोल के कॉन्सेप्ट बताए थे। तो सर जनरल कंट्रोल्स क्या होते हैं? एग्जांपल, पॉलिसी प्रोसीजर्स ऑफ आईटी, दीज आर जनरल कंट्रोल्स। बैकअप लेना जनरल कंट्रोल, डेटा सेंटर होना जनरल कंट्रोल्स। ओके, बैंगलोर में अपना रिकवरी साइट होना, थर्ड पार्टी साइट होना, जनरल कंट्रोल, दिस इज जनरल कंट्रोल्स। डेटा ऑपरेशंस बरोबर होना, दिस इज कॉल्ड जनरल कंट्रोल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी सिस्टम को एक्वायर कैसे करेंगे, डेवलप कैसे करेंगे, ये सब कुछ है, ये जनरल कंट्रोल्स है। चेंज मैनेजमेंट जनरल कंट्रोल्स। व्हाट इज द चेंज मैनेजमेंट? डू यू थिंक सॉफ्टवेयर में अपडेट आते हैं? आंसर इज यस। तो क्या मन किया तो अपडेट कर देने का ऑर्गेनाइजेशन ने? नहीं, पहले देखने का वो अपडेट कितना इंपैक्टेड है, क्या नहीं है, कैसे अपडेट होगा। और शायद जिनको जो मेरे से पढ़ चुके आईटी और टेक्नोलॉजी, तो उनको मालूम होगा, व्हेन यू शुड इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। जब तक रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चेंज मैनेजमेंट ये जनरल कंट्रोल है। ओके, यानी एग्जांपल, ऐसा कोई भी एम्प्लॉय किया, मेरा मन किया और चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया। एग्जांपल, अभी आप मेरे स्टूडेंट हो, क्या रियो प्लेयर को आप अपडेट कर पाओगे या मैं अपडेट कर पाऊंगा? आंसर इज मैं। ओके, आप कब करोगे? जब मैंने किया तो आपको करना पड़ेगा। तो मेरे जो सर्वर पे रियो प्लेयर पड़ा हुआ है ना, उसको अपडेट आप नहीं करोगे। ओके, इमेजिन करो, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कंट्रोल है। इमेजिन करो अगर आप सर्वर पे एक्सेस होता और आप भी अपडेट कर देते तो कैसे होता था? चेंज कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल कॉन्सेप्ट, ये जनरल कंट्रोल है। तो सर फिर एप्लीकेशन कंट्रोल क्या हुआ? एप्लीकेशन कंट्रोल इज समथिंग लाइक दिस, इफ यू रिमेंबर, बाउंड्री कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल, डेटाबेस कंट्रोल, कम्युनिकेशन कंट्रोल। ये आपने इंटर में पढ़े हुए कंट्रोल्स है। ओके सर, इसके कोई एग्जांपल दीजिए। फील्ड इंट्रोगेशन, फाइल इंट्रोगेशन, ये सब एप्लीकेशन कंट्रोल की कहानी है। सर समझाइए ना सर, एग्जांपल वाइज। एग्जांपल मैं बताता हूं सर, अगर आपको याद होगा, मैं एप्लीकेशन कंट्रोल की कहानी बता रहा हूं, एप्लीकेशन कंट्रोल की कहानी बता रहा हूं मालिक। ओके, अगर आपको याद होगा, अगर नेम फील्ड है, ये नेम है और ये फील्ड है, ये फील्ड याद होगा तो ये टेक्नोलॉजी में ऐसे ही बोलते हैं, नेम फील्ड। ओके, इसके बाद एड्रेस फील्ड है। ओके, उसके बाद एज फील्ड है। अब मेरे को थोड़ा सा बताओ, ओके, नेम में क्या मैं अमित तातेड़ 57 ऐसे डाल सकता हूं? अगर मैंने ऐसे डाला, अमित तातेड़ 57 डाला और एंटर किया सॉफ्टवेयर में, ओके, सॉफ्टवेयर पॉपअप करेगा कि भाई नेम में अल्फाबेट के अलावा कुछ नहीं आएगा। ओके, लेट अंडरस्टैंड। एज में क्या, एज में मैं एम डाल सकता हूं, अमित डाल सकता हूं? नहीं। ओके, मैं जैसे ही एंटर करूंगा, डाल तो दूंगा लेकिन मैं एंटर करूंगा तो पॉपअप आ जाएगा। एज में नंबर के अलावा कुछ नहीं आ सकता। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड एप्लीकेशन कंट्रोल। इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड इंट्रोगेशन, फाइल इंट्रोगेशन, रिकॉर्ड इंट्रोगेशन, रीजनेबलनेस चेक। ओके, ये सारे पॉइंट्स आपके हैं एप्लीकेशन कंट्रोल मान। अपने यहां पर सिलेबस में कवर नहीं है ये सारा, एक पैराग्राफ कवर किया हुआ है एप्लीकेशन कंट्रोल पे, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। ओके, ये आपको सब इंटर में पढ़ा चुके हैं मालिक। इंटर के इसमें ये लोग कंट्रोल ले चुके हैं आपका। तो इंटर में आपने इन्होंने जब आपको पढ़ाया था तो दिस थिंग्स आर ऑलरेडी कवर्ड मालिक। सो नेवरदलेस, ओके, एप्लीकेशन कंट्रोल, तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए। एग्जांपल में अभी ये एमसीक्यू के रिलेटेड पूछ रहा हूं। पॉलिसी प्रोसीजर आया तो जनरल कंट्रोल, बैकअप आया तो जनरल कंट्रोल। ओके, सिस्टम डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है जनरल कंट्रोल। सॉफ्टवेयर खरीदना है, जनरल कंट्रोल। सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ डेटा एंट्री करना है और एरर ना हो, एप्लीकेशन कंट्रोल। आउटपुट बरोबर आए, एप्लीकेशन कंट्रोल। तो याद रखो, एप्लीकेशन कंट्रोल, बाउंड्री, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, डेटाबेस, कम्युनिकेशन, ये सब चीज हुई तो एप्लीकेशन कंट्रोल हुआ। सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कंट्रोल है वो एप्लीकेशन कंट्रोल है। तो सर फिर आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल क्या है? आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड मैनुअल कंट्रोल। ये मैनुअल कंट्रोल है, मैनुअल कंट्रोल, बट इट यूजेस द इंफॉर्मेशन व्हिच इज जनरेटेड बाय टेक्नोलॉजी।
IT dependent controls are manual control, okay, which uses information generated by information technology. You need to be very precise, okay, I can go like this. Let's understand, wages are generated by software, and on that sheet or report I am providing the salary, okay, or I am checking it out whether the salary calculation is correct or not. This is called IT dependent control. This is not a general control because salary calculation is my area. This is not a application control because it is not in software, but it is an IT dependent control because I am using some reports. Yani any control which uses the report which is generated by technology. Any control which is using the report of technology, is called IT dependent control. So there are three types of control, Malik. One is general control, one is application control, and one is IT dependent control. जनरल कंट्रोल वापस मैं समझा देता हूं. जनरल कंट्रोल ओके टेक्नोलॉजी के रिलेटेड होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए जनरल नहीं होता है. यानी एग्जांपल पूरे अभी एग्जांपल मेरे पास 5 सॉफ्टवेयर रहे, पांचों सॉफ्टवेयर के लिए बैकअप का मेथड अलग एक ही होगा, पॉलिश प्रोसीजर एक ही होगा, डेटा सेंटर एक ही होगा, जनरल कंट्रोल. लेकिन 5 अलग अलग सॉफ्टवेयर में 5 अलग अलग कंट्रोल रहेंगे. ओके एप्लीकेशन कंट्रोल, ओके कोई दूसरा ही कंट्रोल है, लेकिन वो कंट्रोल इस सॉफ्टवेयर से रिपोर्ट यूज कर रहा है और उसके बाद उधर डिसीजन ले रहा है. ओके दिस इज कॉल्ड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया. तो जब आप रिस्क एसेस करोगे मालिक, जब आप रिस्क एसेस करोगे तो आपने ध्यान रखना है, तो आपको ये 3 कंट्रोल पे रिस्क एसेस करने चाहिए. ओके 3 कंट्रोल पे रिस्क एसेस करने चाहिए. मेरे ख्याल से इधर तक कहानी क्लियर है मालिक. तो 3 कंट्रोल पे रिस्क एसेस करने चाहिए. भारत माता की जय. 3 कंट्रोल पे रिस्क एसेस करने चाहिए. ओके अब क्वेश्चन है सर, ये तो कंट्रोल तो समझ गए हमको, ठीक है कंट्रोल मेरे ख्याल से समझ गया. अब ये कंट्रोल को इवैल्यूएट कौन से लेवल पे करें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मालिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके क्योंकि बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहां पर ये होता है कि आईटी रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल और इवैल्यूएटिंग रिस्क एंड कंट्रोल, ये दोनों में फर्क क्या है? ये दोनों में फर्क क्या है मालिक? दोनों में अगर आप देखोगे, दोनों में फर्क तो बताओ मेरे को. एक है असेसिंग आईटी रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल, एक है इवैल्यूएटिंग रिस्क एंड कंट्रोल इन टेक्नोलॉजी, इन आईटी ओनली, बिकॉज अपन आईटी का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं. दोनों में ये फर्क है. पहला कंट्रोल कौन से है, जो अपन ने अभी ऑलरेडी पढ़ लिया, कंट्रोल कौन से है? तो आपके 3 कंट्रोल है, जनरल, एप्लीकेशन एंड आईटी डिपेंडेंट. अब क्वेश्चन आता है, ये कंट्रोल कौन से लेवल पे डाले जाते हैं, कौन से लेवल पे ये इवैल्यूएट किए जाते हैं? मुझे इवैल्यूएट करना है, एसेस करना मतलब उसमें इवैल्यूएट करना हुआ. इवैल्यूएट कौन से लेवल पे करेंगे? इसीलिए ये 2 तरह के इस लेवल पे डिसाइड करता है. ओके एक लेवल है एंटिटी लेवल कंट्रोल्स, और एक होगा प्रोसेस लेवल कंट्रोल्स. प्लीज अंडरस्टैंड, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मालिका. मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो आप एंटिटी लेवल कंट्रोल्स और प्रोसेस लेवल कंट्रोल समझ रहे हो, उसका मतलब क्या है? ओके एंटिटी लेवल कंट्रोल्स पे अपन इवैल्यूएट करेंगे और प्रोसेस लेवल कंट्रोल्स पे अपन इवैल्यूएट करेंगे. इसका मतलब क्या है? जो आपने 3 कंट्रोल पढ़े ना, जनरल, एप्लीकेशन, आईटी डिपेंडेंट, ये 3 आईटी डिपेंडेंट छोड़ दीजिए एक बार. जनरल एप्लीकेशन दिस कैन बी एट एंटिटी लेवल ऑल्सो, एंड जनरल एप्लीकेशन इट कैन बी एट प्रोसेस लेवल ऑल्सो. प्लीज अंडरस्टैंड. ओके मतलब क्या हुआ, अगर मुझे एसेस करना है तो मैं कंट्रोल देखूंगा, अगर मुझे इवैल्यूएट करना है तो कहां इवैल्यूएट करना है. ये डिफरेंस समझ लीजिए. अभी के लिए इतना समझ लीजिए, इतना ही काम काफी है, क्योंकि इतने इसमें अपना काम टारगेट हो जाता है. अब क्वेश्चन ये आता है, सर एंटिटी लेवल कंट्रोल और प्रोसेस लेवल कंट्रोल मतलब क्या? ओके एंटिटी लेवल कंट्रोल मतलब ओके फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट, फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू ए डिपार्टमेंट लेवल, दीज कंट्रोल आर कॉल्ड एंटिटी लेवल कंट्रोल्स. Entity level controls are applicable everywhere. It can be a top management, it can be a lower management, it can be a middle management, board of director. Entity level control. Process level control, it is applicable only to a process. Purchase के प्रोसेस के लिए process level control. Sales के process level control. Okay, ये control wages का process level control. But entity level control is applicable at top management also, at process also. यानी परचेस के प्रोसेस को जो कंट्रोल डाले जाएंगे, खाली परचेस के प्रोसेस को जो कंट्रोल डाले जाएंगे, कान खुले हैं मालिक, कान खुले, परचेस के प्रोसेस को जो कंट्रोल डाले जाएंगे, दे आर कॉल्ड एंटिटी लेवल कंट्रोल्स. परचेस के प्रोसेस के लिए जो डाले जाएंगे कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस लेवल कंट्रोल्स. लेकिन टॉप से लेकर लोअर तक जो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एंटिटी लेवल कंट्रोल्स. तो सर अभी ये कंफ्यूजन हो गया, तो सर क्या ये ऐसा माना जाएगा जनरल कंट्रोल्स या एप्लीकेशन कंट्रोल्स, ये दोनों मतलब जनरल कंट्रोल्स आर एंटिटी लेवल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन इज प्रोसेस लेवल कंट्रोल? आंसर इज नो.
ऐसा डिफाइन करना बहुत मुश्किल होगा, ऐसा डिफाइन करना बहुत मुश्किल होगा, प्लीज डू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो ये दोनों में मिक्स मैच मत करो। एक आप चीज दिमाग में रख लो, एसेस करने बोला तो अपने को देखना है जनरल एप्लीकेशन, और इवैल्यूएट करने को बोला तो एंटिटी एंड ये पॉइंट, दोनों कैटेगरी अलग अलग है। ओके, उसको थोड़ा सा और एम्फसाइज करने में, आपको समझने के लिए मैं बता दूं तो आपको ये समझा सकता हूं, जनरल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल कैन बी इवैल्यूएटेड एट एंटिटी लेवल एंड प्रोसेस लेवल। खाली मैं परचेज के प्रोसेस को चेक करूंगा, ओके, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस लेवल। मैं टॉप मैनेजमेंट, मिडल, लोअर सबको चेक करूंगा, एंटिटी लेवल। मैं खाली परचेज का जो सॉफ्टवेयर है वो चेक करूंगा, प्रोसेस लेवल एज वेल एज एप्लीकेशन लेवल। मैं खाली ये देखूंगा परचेज का बैकअप हो रहा है कि नहीं, परचेज का बैकअप हो रहा है कि नहीं, खाली परचेज का बैकअप, तो प्रोसेस लेवल एंड बॉस जनरल लेवल। कुछ समझ में आया? इस तरह से कैटेगरी है वो। तो आपको ये समझना होगा, ये तीनों एसेस किए जाते हैं ये दो लेवल पे। तो दो लेवल कैसे डिवाइड करोगे? एंटिटी लेवल, ओके, और प्रोसेस लेवल। गड़बड़ मत करना, एंटिटी लेवल मतलब टॉप मैनेजमेंट खाली नहीं होता है, एंटिटी लेवल मतलब ऑल लेवल्स, एंड प्रोसेस लेवल मतलब सिर्फ वो डिपार्टमेंट या प्रोसेस। ओके, तो अब इसमें और चीज है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? परवेजिव कौन सा है? परवेजिव मतलब एप्लीकेबल टू एवरीवन, एंटिटी लेवल कंट्रोल। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल रहेगा एंटिटी लेवल कंट्रोल। तो एंटिटी लेवल कंट्रोल में भी दो इसमें डिवाइडेड है, एक है डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल और एक है इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल। मां कसम सर, ये क्या है? अभी एकदम आराम से रहे। डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल, इसका मतलब क्लियर कट है। ओके, आपको अकाउंट बैलेंस याद होगा, एबीसीडी, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, जो भी कंट्रोल्स होंगे, वो कंट्रोल्स जो डाले जाएंगे वो प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट करते होंगे एरर, मिस स्टेटमेंट, टाइमली मैनर में। प्लीज अंडरस्टैंड क्या बोल रहा हूं। ओके, डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल ऐसे कंट्रोल होते हैं, डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल ऐसे कंट्रोल होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, करेक्ट करते हैं क्या? मिस स्टेटमेंट। ओके, मिस स्टेटमेंट एट एबीसीडी लेवल, एवरीवेयर। एंटिटी लेवल कंट्रोल, ओके, एंटिटी लेवल कंट्रोल, ओके, एंटिटी लेवल कंट्रोल एक ऐसे कंट्रोल होते हैं, आई जस्ट मिस आउट, फोन आ रहा था इसलिए ये हुआ। एंटिटी लेवल कंट्रोल ऐसे कंट्रोल होते हैं, ओके, जो सब जगह डाले जाते हैं। प्रोसेस लेवल कंट्रोल जो होते हैं सिर्फ प्रोसेस पे डाले जाते हैं। तो एंटिटी लेवल कंट्रोल जो रहेंगे मालिक, वो दो इसमें डिवाइड किए जाएंगे, डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल एंड इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल। तो डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल, ओके, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्या करेंगे? ये प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट करेंगे सारे कंट्रोल्स। ओके, तो इनडायरेक्ट क्या करेंगे? इनडायरेक्ट, ओके, ये स्पेसिफिक बिजनेस को रिलेट नहीं करते, तो ये प्रिवेंट और डिटेक्ट नहीं करते। ओके, मिस स्टेटमेंट को, सॉरी, इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल प्रिवेंट, डिटेक्ट नहीं करते। आंसर इज यस, दे डू नॉट, मैं लिख ही रहा हूं, डू नॉट प्रिवेंट और डिटेक्ट और करेक्ट मिस स्टेटमेंट। मिस करेक्ट तो छोड़ी दो, डिटेक्ट करेगा तो करेक्ट करेगा, और ये प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मिस स्टेटमेंट। ओके, तो सर जो कंट्रोल एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखो, परचेज का एक हेड होगा, ओके, अब ये समझना शुरू तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल ही दे देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। परचेज हेड, परचेज मैनेजर, परचेज असिस्टेंट। परचेज का जो प्रोसेस है वो फॉलो करने वाला, यानी परचेज ऑर्डर बनाना, परचेज ऑर्डर के अप्रूवल लेना, उसके बाद परचेज ऑर्डर वेंडर को देना, वेंडर को पैसे देना, ओके, पेमेंट करना, ये सारा काम परचेज असिस्टेंट देखता है मालिक। ये सारे कंट्रोल जो होंगे ना, ये हो गए प्रोसेस लेवल कंट्रोल, प्रोसेस लेवल मालिक, समझा? ओके, अब समझना शुरू करो। The control which are applicable to these all three, these are called entity level controls. These are called entity level controls. और ये जब entity level controls की बात करेंगे तो इसमें वापस दो होंगे, एक होगा डायरेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट। तो अब समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या होगा। डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल ऐसे कंट्रोल्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं मिस स्टेटमेंट,
एग्जाम्पल सर, डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल क्या होंगे? ओके भाई, ये तीनों जो भी एम्प्लॉय होगा उनका मॉर्निंग 9 AM में शिफ्ट चालू होगा और शाम को 5 PM तक शिफ्ट रहेगा, और अगर एक भी इसमें से किसी ने भी 15 मिनट डिले किया तो उसकी उस दिन की सैलरी कट हो जाएगी। ओके, ये है हमारे एंटिटी लेवल कंट्रोल्स। मालिक समझ करो। ओके, ये हमारे एंटिटी लेवल कंट्रोल्स, डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल, डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल्स क्या हो गया? ओके, इनडायरेक्ट विल बी HR अपॉइंटमेंट। ये प्रिवेंट नहीं करेंगे, ये प्रिवेंट नहीं करेंगे, डिटेक्ट नहीं करेंगे, एरर को प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट नहीं करेंगे। तो सर ये HR अपॉइंटमेंट मतलब, ओके मेरे को बताओ, जो पर्सन अपॉइंट करना चाहिए एज ए परचेज हेड या परचेज मैनेजर या परचेज असिस्टेंट, ये इंटीग्रिटी वाला बंदा होना चाहिए, इंटीग्रिटी वाला बंदा होना चाहिए, ये तोड़ बंदा होना चाहिए। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट ओके इज नथिंग बट इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल। दिस इज नॉट डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल, बिकॉज कितना भी रहा तो सब्जेक्टिव है। बंदा परचेस करेगा, अभी मेरे को बताओ, कोई भी बोलेगा कि मैं फ्रॉड नहीं मैं फ्रॉड करके आया हूं इस कंपनी से और मैं तुम्हारे पास जाऊंगा। ओके, नहीं, इंटीग्रिटी वाला करना। तो ये HR को ध्यान रखना होगा कि जो पता कर रहे हैं वो डायरेक्टली उसके बोलने पे पता कर रहे हैं या उनके बैकग्राउंड स्क्रीनिंग कर रहे हैं। बैकग्राउंड स्क्रीनिंग करना मतलब उनके जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है उनसे बात करना, उनके रेफरेंस लेना, ये सब इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल है। डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल परचेज हेड, परचेज मैनेजर, परचेज असिस्टेंट तीनों को लगेंगे, और वो खाली परचेज असिस्टेंट जो काम करेगा वो प्रोसेस लेवल कंट्रोल है। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आ जाता। ये हो गया इवैल्यूएटिंग कंट्रोल। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है मालिक। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, गुड इनफ। ओके, नहीं आया तो भाई बस इतना याद रखो। ओके, क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आए एसएस जनरल एप्लीकेशन IT डिपेंडेंट, इवैल्यूएट एंटिटी एंड प्रोसेस, एंटिटी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये एग्जांपल एटलीस्ट याद रख लो। उससे ये पॉइंट याद रख लिया ना तो आपको पूरा एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर रेडी होगा मालिक। ओके, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया, और ये क्लियर हो गया तो अपना पूरा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद एक स्टेप्स वाला आंसर है। ओके, जो स्टेप्स इन यूजिंग कैट है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। स्टेप्स इन यूजिंग कैट, इसको आपने रट लेना है। ओके, ये स्टेप्स इन यूजिंग कैट टूल, ये आपको इंटरमीडिएट का ही आंसर है। सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करो, कौन सा कैट टूल यूज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ओके, कैट टूल आपको नहीं समझाया है क्योंकि वो ऑल टुगेदर इन IPCC IT में समझा दिया है। अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके बाद बिजनेस ऑब्जेक्टिव को समझिए। ओके, अभी एग्जांपल स्नैपशॉट है, ओके स्कार्फ है, CIS है, ITF है, इनमें से कौन सा टूल यूज करें। बहुत सारे टूल्स है, ऑडिट हुक्स है, कौन सा टूल यूज करें, तो ये स्टेप से आपको समझ में आता जाएगा। उसके बाद है आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ डेटा। ओके, सोर्स कौन सा है, फॉर्मेट कौन सा है डेटा का, सोर्स क्या है, फॉर्मेट क्या है डेटा का। पहला वापस बोल रहा हूँ, बिजनेस एनवायरनमेंट समझिए उनका। एनवायरनमेंट मतलब क्या, देखिए एग्जांपल, एनवायरनमेंट स्टैटिक है तो अपन स्कार्फ यूज कर सकते हैं, एनवायरनमेंट डायनामिक है तो अपन को CIS या ऑडिट हुक्स यूज करना पड़ेगा। अभी जिसको ये ऑडिट हुक्स या CIS ये कुछ याद नहीं है तो IPC का इंटर का सिलेबस EISSM का देख लो, उसमें होगा, नहीं होगा तो छोड़ दो, सिलेबस में है भी नहीं, पर मैं आपको एग्जाम्पल वाइज समझा रहा हूँ। तो पहला पॉइंट अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस ऑब्जेक्टिव समझिए, उसके बाद सोर्स और फॉर्मेट समझिए, उसके बाद एक्सट्रैक्ट डेटा कीजिए। डेटा माइनिंग आपने सुना होगा इंटर में, तो एक्सट्रैक्ट डेटा कीजिए। उसके बाद वो डेटा कंप्लीट है एंड एक्यूरेट है कि नहीं वो पता करिए, ताकि उसके ऊपर अपन ऑडिट कर सकते हैं, और अगर वो है तो अपना क्राइटेरिया अप्लाई कीजिए, मतलब ऑडिट का क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया अप्लाई करने के बाद कंफर्म कीजिए रिजल्ट बरोबर आ रहे कि नहीं, एंड इफ रिजल्ट्स आर बरोबर उसके हिसाब से रिपोर्ट कीजिए। खत्म स्टोरी, दैट्स इट। ये आपने रटना, इससे ज़्यादा है नहीं, बट एकदम सिंपल है। बिजनेस एनवायरनमेंट समझिए, बिजनेस ऑब्जेक्टिव देखिए, बिजनेस ऑब्जेक्टिव के बाद सोर्स कौन सा है वो देखिए, उसके बाद वो डेटा को एक्सट्रैक्ट कीजिए, उसके बाद वो कंप्लीट और एक्यूरेट है कि नहीं देख लीजिए, उसके बाद उस पर अपना क्राइटेरिया लगाए। क्राइटेरिया मतलब फिल्टर। ओके, तो आपको क्या करना है, यूजुअली एक्सेल शीट में अपन करते हैं ना, एज मोर देन 45, एज लेस देन 45, ऐसा कुछ क्राइटेरिया लगाइए, उसके बाद रिजल्ट देखिए, और उसके बाद ये करिए रिपोर्ट। एंड लास्ट इज स्टैंडर्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये आप नोट में तो पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। स्टैंडर्ड एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस में ये है कि कौन से है, तो स्टैंडर्ड्स कौन से एप्लीकेबल है। अपने एसेज है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, 143 ऑफ कंपनीज एक्ट, अगर आपको याद होगा IFC बोला था, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ओके विच इज नॉट एप्लीकेबल टू OPC एंड स्मॉल कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनी। याद आया मालिक, कल ही अपने पढ़ा हुआ है। SOX एक्ट करके एक है, ओके उसके बाद है इन ISMS है, ISO 27001, ITL है, ओके डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड का एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एक और एक स्टैंडर्ड है, ओके मेनली कोबिट, ये बाप स्टैंडर्ड है। अगर आप IT ऑडिट करने जाओगे तो ये आपको अच्छे से याद आना चाहिए। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ये बाप स्टैंडर्ड है अक्रॉस वर्ल्ड बोल रहा हूँ।
और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। कर सर ये क्या सारे स्टैंडर्ड का कुछ है क्या? ओके, एज सच अगर आप नोट्स देखोगे या मॉड्यूल देखोगे, नोट्स में तो यही है, मॉड्यूल देखोगे तो एक छोटे छोटे पैराग्राफ वो स्टैंडर्ड के ऊपर है। स्टैंडर्ड को समझाया नहीं है, बस स्टैंडर्ड कहाँ पर है, कैसा है, वो ब्रीफ दिया हुआ है। तो आपको चाहिए तो वो मॉड्यूल से रीड मार लीजिए, अदर देन दैट नहीं भी रीड मारा तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसको एक बार स्ट्रक्चर गो थ्रू रेडी होना चाहिए। बाकी इसमें इतना टाइम पास करने का मतलब नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से याद होना चाहिए। सो नेवरदलेस मालिक, तो टेक केयर। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मेरे ख्याल से अभी आपके दिमाग में क्लियर रहेगा मालिक। ओके, तो कुछ डाउट रहा तो मेरे को मैसेज करिए मालिक, आई विल सॉल्व दैट वन। थैंक यू एंड होपफुली यू आर सेटिस्फाइड विद द क्रैश कोर्स मालिक। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। तो क्रैश कोर्स में मैंने वो सब कुछ कवर किया है जो मैं फुल कोर्स में कवर करता हूँ, तो मतलब ऐसा कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं है। इवन आई ट्राई टू गिव द एग्जाम्पल्स। ओके, अगर आपको पसंद आए तो 100% सजेस्ट कीजिए, फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिए, एंड डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स के साथ मिलते हैं मालिक। रिजल्ट्स आपके कम्युनिकेट कीजिए एंड एग्जामिनेशन की तैयारी तोड़ करिए। ओके, अनाउंसमेंट कभी भी हो, क्या हो, जैसा भी है, तोड़ करिए मालिक।